So, as promised, I am back with a independent exclusive tutorial on parajumbles. Parajumbles is a very important question type in verbal ability sections for all the competitive exams across the arena. Be it CAT, be it XAT, be it SNAP, be it NIMS, be it tests, be it MAT, you name it. Even non-MBA entrance examinations like Bank PO, right? Or you go for CLAT, you go for BBA entrance, you go for any competitive examination. This is one type of question which is going to appear definitely in various avatars. So, let us understand the approach, the tricks, and the tips in order to solve para-jumble questions. So, let us understand the approach with an example. Okay. Now, what you have in front of you is again a paragraph which has been split into 4 parts, namely A, B, C, and D. Right? And the original flow has been disturbed, and as a result, we call these type of questions as jumbled paragraphs or parajumbles. Right? Because the original form has been jumbled up. It has been jumbled into 4 parts. The task is to again bring this particular paragraph into its original coherent flow. Now, how do we approach this? See, in CAT, especially in CAT, these come under the theta type of questions. So when I talk of theta, I am talking of those questions where there are no negative markings. So essentially, one particular information which I will to share now is, do not ever leave theta type of questions. Theta stands for type in the answer, right? So theta type of questions will not have any options as far as CAT is concerned. But for other examinations, these questions do contain options as well. But since I'm emphasizing on CAT in this tutorial, I will be trying to solve it, or we will be trying to practice in order to solve these types of questions without the help of options. Okay? Now see, A, B, C, and D. Now we need to find out all those clues which can again help us to bring these say sentences back into the original form. Now if you have a cursory glance, a kind of skimming through these 4 sentences that you have in front of your screen, there is a giveaway. There is a clue which you can immediately grasp onto. And what is that clue? See, out of the 4 sentences, 3 of them start with he, his, and he. And one of the sentences, that is option number C, or sentence number C, I won't say option, I'm sorry, say C, sentence C starts with it. Now when we are talking about the other 3 sentences, he, his, he, a pronoun, therefore it has to refer to a noun. There has to be a name of this person who has been addressed as he, his, and he. And we find this person in sentence C, and we find that his name is Benis. Right? Benis is the name of the person, and you find this person being referred by he, his, and he in the other 3 sentences. So essentially, one thing is for certain, the first sentence or the opening sentence would be C, right? So now let us read this sentence so that we can understand what it says. क्या बोल रहा है ये sentence? ठीक है? It was one of those nights in the office when the office clock was moving towards 4 in the morning and Benis was still not through with the incredible mass of paper stacked before him. ये उन रातों में से एक रात था ऑफिस में जबकि बेनिस भाई साहब जो हैं वो अभी भी काम पे लगे हुए थे और जो ऑफिस का घड़ी था
ऑफिस का जो क्लॉक था वो धीरे धीरे सुबह के 4 बजने की इंगित कर रहा था और बेनिस अभी भी बहुत सारे पेपरों के सामने बैठा था, यानी कि उसका काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। मान लीजिए, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो व्यक्ति है बेनिस, ये सुबह ऑफिस टाइम में आया होगा, यानी कि पिछले दिन 10 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे कभी भी आया होगा, जो भी उनका ऑफिस टाइम है। और नॉर्मल ऑफिस टाइम शायद 5:30, 6, 6:30, 7 बजे, 8 बजे ख़त्म हो गया होगा। लेकिन वो घर नहीं जा पाए हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड है, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर है कि बेचारा घर नहीं जा पाया है। और अभी सुबह का 4 बज रहा है, नेक्स्ट दिन हो गया है और अभी भी बेनिस का काम ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है ना? अभी भी बेनिस जो है उसको ये दिख रहा है कि भाई साहब, मेरा काम तो अभी भी बाकी है, राइट? द क्लॉक वॉज मूविंग टूवर्ड्स 4 in the morning, सुबह का 4 बजने वाला था। तो बेनिस का स्थिति कैसे होगा? बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होगा, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड होगा, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेस होगा। His energy must have been sapped. He must be actually waiting to go home, waiting to get over with his task, but no, it is not showing any signs of getting over. Oh my God! क्या एक भयानक स्थिति है ये, राइट? तो ये एक इंट्रोडक्शन मिलता है हमें। अब हम देखते हैं कि और कुछ क्लूज मिल सकता है क्या। बी देख रहे हैं, बी बोला टू इज हॉरर। टू इज हॉरर मतलब वो एकदम पूरी तरह से परेशान हो गया, दुस्वप्ना की तरह का एक चीज उसको क्या हुआ, उसको रियलाइज हुआ। ही रियलाइज्ड, वो रियलाइज करता है। जब मैं कुछ भी चीज रियलाइज करता हूं तो डेफिनेटली वो रियलाइजेशन के लिए मेरे सामने कुछ फैक्ट्स, फिगर्स, कुछ कारण आना चाहिए, राइट? तो रियलाइजेशन जो हुआ है, रियलाइजेशन के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, ये हमें रजिस्टर करना है अपने आप में। To his horror, he realized that he had become the victim of an amorphous, shapeless, unwitting, unconscious conspiracy, षड्यंत्र, to immerse, डुबो देना him in routine work में वो ये चीज़ उसको रियलाइज होता है, वो समझ पाता है कि कहीं ना कहीं वो एक षड्यंत्र का शिकार हो गया है, एक फॉर्मलेस, शेपलेस षड्यंत्र का शिकार हो गया है, जहाँ पे उनको डुबो दिया गया है रूटीन काम में जिसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं था, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गधा मजूरी, है ना? गधा मजूरी पे काम करते रहो, कोई सिग्निफिकेंस, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये वो रियलाइज करता है, ये वो रियलाइज करता है। लेकिन ये जो रियलाइजेशन है, वो रियलाइजेशन है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, ये रियलाइजेशन आना कहाँ से चाहिए? आएगा तभी जब मुझे इसका कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेगा। तो कौन सा सेंटेंस है जहाँ से बेनिस को फैक्ट्स और फिगर्स मिला है जिससे उसको ये रियलाइजेशन आ गया? दैट पर्टिकुलर सेंटेंस वी विल फाइंड हियर इन सेंटेंस नंबर डी। He reached out for his calendar and ran his eyes down each hour, half hour and quarter hour to see where his time had gone that day, the day before, the month before. उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना कैलेंडर को निकाला और देखा कि उसका जो समय है वो गया कहाँ। पहला 1 घंटा का समय कहाँ गया, आधा घंटा का समय कहाँ गया, क्वार्टर आवर का समय कहाँ गया, उससे पहले वाला दिन का समय कहाँ गया। तो ये इसका पूरा क्या करता है, वो एनालाइज करता है। वो कैलेंडर को देख के पूरी तरह से एनालाइज करता है कि उसका समय गया कहाँ है। जब वो रियलाइज, इसके बाद उसका रियलाइजेशन होता है, उसके बाद इसको रियलाइजेशन होता है कि अरे ये तो मैं एक षड्यंत्र में फंसा हुआ हूँ, ये तो मैं एक षड्यंत्र में फंस गया हूँ, राइट? ये जब उसको रियलाइज होता है तब वो क्या करता है? वो और कुछ नहीं करेगा। वो लास्ट वो क्या बोला? एग्जैस्परेशन, जो आपका सेंटेंस ए बता रहा है, एग्जैस्परेशन है
He is declaring his helplessness. He was bone weary and soul weary and found himself muttering. Muttering मतलब धीरे से अपने आप में बात कर रहा था. Either I can manage this place or it's unmanageable. एक तो हो सकता है मैं ये जगह मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा, मैनेज करने के लिए सक्षम ही नहीं हूं, या फिर हो सकता है ये जगह ही अनमैनेजेबल है. तो मेरे दोस्तों, अगर मैं इसको फिर से लय में लाऊं, इसको ये जंबल को फिर से सही कर दूं, तो क्या फॉर्म आ रहा है? अपना पहला वाला सेंटेंस क्या होगा? यस, सेंटेंस सी. उसके बाद बी से पहले कौन आएगा? क्योंकि बी में तो रियलाइज कर लिया है, तो बी से पहले कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा. तो हमें एक पेयर मिल गया. पेयर क्या क्या होता है? पेयर हो जाता है कि ये दोनों सेंटेंस तो आगे पीछे आएगा ही आएगा, ये तो साथ साथ ही आएगा. तो यहां पे पेयर कौन सा हो गया? जो एकदम इंश्योर्ड, सर्टेन, गारंटीड पेयर है, कौन सा हो जाएगा? दैट विल डेफिनेटली बी डी एंड बी. पहले डी आएगा फिर बी आएगा. तो हमारे पास क्या क्या आ गया है? हमारे पास ये कुछ इंफॉर्मेशन आ गया है कि डी और बी पेयर है, सी जो है वो ओपन करेगा सेंटेंस को, सिर्फ मुझे ए को अभी फिट करना है. तो ए कहाँ फिट होगा? जैसा मैं पहले भी बोला था, ए विल बी दी कंक्लूडिंग सेंटेंस, जहाँ पे वो समराइज करता है कि ये जगह आइदर मैं मैनेज कर नहीं सकता या फिर अनमैनेजेबल है. तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? किस तरह से ये पर्टिकुलर चीज़ हो रहा है? सी डी बी ए. सिंपल. तो अगर मैं कैट का परीक्षा दे रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? एक छोटा सा बॉक्स होगा, बॉक्स में मैं टाइप कर दूंगा, क्योंकि ये टीटा टाइप ऑफ क्वेश्चन है. तो टीटा टाइप ऑफ क्वेश्चन में टाइप क्या करूंगा? आई जस्ट टाइप इन दी करेक्ट फॉर्मेट, करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट फ्लो, जो कोहेरेंट हो गया, राइट. और वो फ्लो क्या है? वो आंसर क्या है? दैट वुड बी सी डी बी ए. सिंपल. कुछ एग्जामिनेशंस में क्या करेगा? कुछ एग्जामिनेशंस में आपका क्वेश्चन ऐसा होगा कि विच इज सेंटेंस नंबर 1 और विच इज सेंटेंस नंबर 2, विच इज सेंटेंस नंबर 3, विच सेंटेंस विल फॉलो सेंटेंस बी. कुछ भी हो, कैसे भी दिया जाए, हम लोग के लिए आंसर्स सारे ही अवेलेबल हैं, राइट. और अगर ऑप्शंस दिया हुआ है, आपको सिर्फ वही वाला ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, जिस ऑप्शन में फ्लो जो है वो है सी डी बी ए. तो ये होता है, दिस इज द वे दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू इंप्रूव, increase your expertise in parajumbles. Okay, I hope you have understood the process and the methodology to crack parajumble questions. We'll follow up with one more question, then we'll end this session. Okay, chalo, let's move on. So now, first of all, spend some time. Try to solve this question using all those tricks and trades which I have just discussed in the previous slide. Try to employ them. Understand you need to find out the clues. Understand then you need to make pairs, build pairs, and move according to the clues that you collect. Right? Take some time. Take some time. Do not hurry. Remember, just like all other questions, parajumbles will also require some practice. Okay? Please take some time and then I'll discuss the answer. I hope you guys have invested some time brainstorming, finding out different ways of solving this particular question. And now, before revealing the answer, let me try and lead you to the answer, right? And then you can check whether it is correct or not. And if not, why have you gone away from the correct answer? Try to find out. Assess the reason of the mistake if you are mistaken, right? And as usual,
Both these parajumbles have been taken from previous year CAT papers so that you can evaluate the degree of difficulty and you can understand that CAT is not impossible, you can make it immensely possible. Now see, here again, I hope you must have read all these sentences at least, so I won't spend a lot of time in discussing all these sentences or explaining the sentences. हम सीधा इसको सॉल्व करने में शुरू हो जाते हैं, राइट? अब देखिए, लेट्स गो टू सेंटेंस डी, राइट? सेंटेंस डी, सेंटेंस डी में क्या बताया जा रहा है? आई इंटेंडेड टू स्टेज अ शार्प गैस्ट्रिक अटैक. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. ये जो सेंटेंस है, आई इंटेंडेड टू स्टेज अ शार्प गैस्ट्रिक अटैक. गैस्ट्रिक अटैक क्या होता है कि आपका पेट में बहुत ज़्यादा भयंकर एक पेन का अटैक हो गया, गैस्ट्रोनॉमिक वाला अटैक हो गया है ना, सो गैस्ट्रिक अटैक हो जाता है. लेकिन क्या करना चाहता है? द पर्सन वॉन्ट्स टू स्टेज अ शार्प गैस्ट्रिक अटैक. स्टेज करने का मतलब क्या होता है? हम लोग स्टेज क्या आता है आपका दिमाग में क्या आता है? ये जो पर्टिकुलर वर्ड है स्टेज, हो सकता है फेजेस आ रहा हो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, फेज 1, फेज 2, फेज 3, राइट? सर्टेन पीरियड्स. और एक होता है स्टेज जहाँ पे हम लोग कोई भी परफॉर्मेंस देते हैं, डांस, ड्रामा एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो वेन एवर आई यूज दिस पर्टिकुलर यूसेज, आई एम स्टेजिंग, राइट? आई एम ऑन स्टेज, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिंग, ड्रामा करने की कोशिश, समथिंग विच इज़ नॉट रियल, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे एक शार्प गैस्ट्रिक अटैक का अभिनय करना चाहता हूँ मैं. आई वॉन्टेड टू स्टेज, आई वॉन्टेड टू एक्ट. मैं ये एक्ट करना चाहता. कभी जब मैं बस ऐसे, आप लोग की उम्र से भी थोड़ा कमी होगा, व्हेन आई वाज ए स्कूल बॉय, उस समय इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हम लोग को कभी कभार ही नसीब होता था. अभी तो शायद आप लोग को होता भी नहीं है, हम लोग के टाइम पे होता था, राइट? तो जिस दिन भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, उस दिन मैं क्या करता था? सपोज वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था? स्कूल डेज में होता था. तो मैं क्या करता था? सुबह से ही मैं प्लान बना लेता था कि किसी तरह से मुझे स्टेज करना है कोई इलनेस, ठीक है? तो मैं जैसे पिताजी के सामने बहुत ज़्यादा एक्टिंग करना शुरू कर देता कि सर में दर्द है, कान में दर्द हो रहा है, आज मुझे स्कूल नहीं जा सकता, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? ताकि मुझे परमिशन मिल जाए, स्कूल से छुट्टी हो जाए और मैं मैच को देख पाऊँ. क्या मुझे एक्चुअली सर में दर्द हो रहा है? नहीं. लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम ट्राइंग टू स्टेज, आई एम ट्राइंग टू एक्ट, आई एम ट्राइंग टू ड्रामेटाइज. सिमिलरली यहाँ पे भी ये भाई साहब जो है ये पर्टिकुलर एक एक्ट करना चाहते थे, और इस इंटेंशन के साथ वो एक ओल्ड फैशन फार्मेसी के दुकान में एंटर होते हैं और एक पॉपुलर शैम्पू मिक्सचर जिसमें कि ऑलिव ऑयल और फ्लेक सोप का मिक्सचर है, उसके बारे में पूछते हैं. ये आपका से सेंटेंस डी है, सिंपल सेंटेंस, राइट? ये एक इंटेंशन था, एक ऑब्जेक्टिव था. एज ए रिजल्ट वो एक फार्मेसी के दुकान में एंटर करते हैं और एक शैम्पू के लिए डिमांड करते हैं. तो फिर क्या करेगा? जो फार्मेसी का जो फार्मासिस्ट थे वो क्या किया? वो आराम से आपका इधर चला गया, दुकान में चला गया, दुकान से एक 6 आउंस का बॉटल जो मिक्सचर था उसको निकाला और रैप किया, ठीक है? जैसा ही वो रैप कर रहा था, तब हमारा जो प्रोटोगोनिस्ट है, हमारा जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो क्या करता है? वो आई ग्रोन्ड एंड इंक्वायर्ड वेदर ही कुड गिव मी समथिंग फॉर एक्यूट गैस्ट्रिक क्रैम्प. ठीक है, मसल क्रैम्प होता है, गैस्ट्रिक क्रैम्प, अचानक एक मसल आपका पुल हो गया और आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक, यानी कि समवेयर अराउंड योर एब्डोमेन, राइट? आई ग्रोन मतलब कराना, दर्द का जो आवाज़ है, आई ग्रोन्ड. वो ग्रोन किया और इंक्वायर किया, क्या मुझे कुछ दवाई मिल सकता है? अभी तक तो शैम्पू के लिए बोला था, अब बोल रहा है कि कुछ दवाई मिल सकता है क्या, राइट? एक्यूट गैस्ट्रिक क्रैम्प. क्या उसको सही में हो रहा है? नहीं, वो स्टेज कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पर्टिकुलर गैस्ट्रिक अटैक को अभिनय करना है उसको, राइट? जैसा ही इसको पूछता है तो जो अपना फार्मासिस्ट होता है, अब फार्मासिस्ट क्या करता है? फार्मासिस्ट ही गोज टू द बैक रीजन्स ऑफ द फार्मेसी, शफल करता है, पीछे वाला रीजन में चला जाता है. क्यों? क्योंकि अभी जो है हमारा किरदार को क्या चाहिए? प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, है ना? प्रेस्क्रिप्शन चाहिए.
प्रेस्क्रिप्शन क्यों चाहिए, इनको प्रेस्क्रिप्शन क्यों बनाना है? क्योंकि अपना किरदार को क्या चाहिए? ही नीड्स अ मेडिसिन नाउ, ही नीड्स अ मेडिसिन फॉर हिज एक्यूट गैस्ट्रिक क्रैम्प, जो कि एक्चुअली में नहीं है, सही में नहीं है, इट्स नॉट एक्चुअल, बट दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग फॉर। तो दवाई के लिए प्रेस्क्रिप्शन बनाना है, तो प्रेस्क्रिप्शन बनाने के लिए जो फार्मासिस्ट थे वो क्या किया, वो फार्मेसी के बैक रीजन्स में चले जाते हैं, और जैसे ही वो अपना जो कैरेक्टर है उनके आँखों से थोड़ा दूर हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, फटाफट वो दुकान का, वो फार्मेसी का टेलीफोन उठाते हैं और कंसल्टेंट में फ़ोन करके बता देता है कि मैं यहाँ पे, उनका लोकेशन जो है उसके बारे में बता देते हैं कि मैं इस लोकेशन में अवेलेबल हूँ, ठीक है। और उस समय तक क्या हुआ था, उस समय तक वो शैम्पू तो आ ही गया था, शैम्पू जैसा रैप करके दे दिया था। फिर इन्होंने बोला था कि भाई साहब मेरा पेट का दर्द के लिए कुछ ले आओ, तो वो प्रेस्क्रिप्शन बनाने चला गया। तो अभी तक तो फार्मासिस्ट आया नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं आया, तो जैसे उसको मौका मिला तो सेंटेंस ए का जो आपका से एक्शन है वो हमारा किरदार कर देता है। विद दैट आई स्वॉलोड दिस शैम्पू एंड ऑब्टेन द मोस्ट रियलिस्टिक रिजल्ट्स ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट। अगर कोई भी शैम्पू को निगल लेगा तो डेफिनेटली उसका पेट में दर्द होना है ही, और जैसे ही वो शैम्पू को निगल लिया तो फिर क्या होगा, ऑलमोस्ट जो वो चाहता था, जो एक्ट करना चाहता था, जो अभिनय करना चाहता था, जो स्टेज करना चाहता था, क्या स्टेज करना चाहता था, शार्प गैस्ट्रिक अटैक, ये जैसे जो भी वो स्टेज करना चाहता था उसका रियलिस्टिक, एकदम रियलिस्टिक रिजल्ट्स उसके सामने आ जाता है, राइट। तो ये पूरा जो स्टोरी है, स्टोरी क्या है, एक भाई साहब है जिनको ये एक पर्टिकुलर एक्टिंग करना है, तो एक्टिंग करने के लिए वो क्या किया, एक शैम्पू के लिए बताता है फार्मेसी में जाके मुझे इस तरह का एक शैम्पू चाहिए। तो जैसे ही वो भाई साहब ये शैम्पू लेने के लिए अंदर जाते हैं, रैप कर रहे होते हैं, तो वो कराने लगता है और बोलता है कि भाई साहब आपके पास कोई दवाई होगा क्या, बहुत भयंकर पेट में दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक क्रैम्प हुआ है। तो वो फार्मासिस्ट चला जाता है शैम्पू का डिब्बी पकड़ा के कि चलो मैं प्रेस्क्रिप्शन करके आपका दवाई लेके आता हूँ। तो जैसे ही वो बैक के रीजन में फार्मेसी के जैसे पीछे के रीजन में जाता है, तो हमारा किरदार क्या करता है, फटाफट वो शैम्पू निकल लेता है, उससे पहले वो फ़ोन करके बता देता है उसका लोकेशन क्या है। और जैसे ही वो शैम्पू निकलता है, वो किसी को भी होगा बहुत ज़्यादा से पेट में दर्द होगा, तो जब वो कंसल्टेंट से आदमी आएगा तो उसको ये ऐसा ही दिखेगा, यही समझ में आएगा कि भाई साहब इसको तो सही में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, इसका तो तबीयत खराब है। लेकिन एक्चुअली क्या तबीयत खराब है? हाँ है, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए है, वो शैम्पू निकला है इसके लिए है, वो कोई ऐसा सच बीमारी नहीं होगा, राइट। तो फिर इसको अगर हम लोग फिर से सही फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा, सिंपल, इट वुड बी डी, सी, बी एंड A. So the answer is DCBA. Clear? Now the only thing that we need to do is practice. I'll be giving you a lot of handouts, lot of questions, and we can actually go on to practicing a full-fledged verbal ability kind of question papers from the next session onwards. ओके, ऑल दी बेस्ट। और एक बार देखिए, और एक बार सुनिए, एक बार खुद से प्रयास कीजिए। यू जस्ट हैव टू पुट इन सम time, and I'm sure it's a guarantee that your scores in the verbal ability section would be excellent. Okay, all the best.